Good morning, everyone. How are you guys? Must. And how is the quarantine time at home with your family, with your father, with your mother, with your brother, sister? मस्त टाइम है ना. कहाँ इन लोग के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता था, और कहाँ इतना मौका मिल रहा है कि अर्धी शायद यही विश होती होगी कि और जल्दी स्कूल खुल जाए. Nevertheless, enjoy this time also, and simultaneously try to manage your timings for your studies, for your each and every family members, because it is the best time to spend with them. After this, whenever we will came back to the school, to the any institute, so as I mentioned you earlier that we are not going to leave you, so enjoy this time, be safe, be healthy, work out on your immunity as much as possible. Okay, so today till last lecture we have discussed about the dipole. What is dipole? Let me remind very quickly before starting today's lecture. Dipole was a pair of two opposite charges of different nature separated by a certain distance is called what? Dipole. Then we go for the electric dipole moment. What is electric dipole moment? It was the product of the magnitude of either charge multiplied by the separation between them. The direction of electric dipole moment was from negative charge to the positive charge. Then later on we discuss also about the electric field of the electric dipole at any point on axial line, at any point on the equatorial line, at any point on the general point. This much packet we have already done. So today we are going to discuss if we place the same electric dipole in any external uniform electric field. If the dipole is placed in uniform electric field, then what happens with that dipole, or what that electric field try to do with that electric dipole. So simply it's a case of दादागिरी, you can say, गुंडागर्दी है, हर कोई करता है, हर कोई अपना एक जैसे कहते हैं ना डोमिनेंस बनाना चाहता है. सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ट्राई टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन. Whatever be the direction of the dipole moment, in whichever place, in whichever position that electric dipole moment has been placed, now when you put it inside of the electric field, then the electric field try to align that dipole in its own field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अपने ही डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करती है. कुछ भी करेगी, whatever he will done, कुछ भी उससे जो बन पड़ेगा वो करेगी, लेकिन वो उसको अपने लाइन में ला कर ही रहेगी. ठीक है. सो केस सिंपल सा है. आपके बुक्स में जो हेडिंग मिलेगी आपको वही मिलेगी, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बोर्ड में बेटा, कोर्स में, जेई मेंस, एडवांस में भी कहीं भी आप नीट का एग्जाम दीजिए, उसमें केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जिक्र है, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं है. मींस टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ uniform electric field. Later on, at the end of the discussion, I will discuss about what will happen if a dipole is placed in non-uniform electric field also, but that is not in the course. But physics पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, कोर्स भी कोर्स के लिए नहीं पढ़ना, आपको भी पता होना चाहिए फिजिक्स में क्या चीजें कैसे हैं. So अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि if a dipole is placed in uniform electric field, then what happens with that dipole. ठीक. As you can see in the diagram, a simple sketch I have been drawn already. This is the uniform electric field, and how can you conclude that this is a uniform electric field? Because these are the equispaced parallel line. In the last to last video in the properties of electric field line, I had already explained the uniform electric field line represented by a equispaced parallel lines as here. So these are the uniform electric field lines. Why? Because these are the equispaced parallel lines, and the magnitude of electric field is E, and it is directed from this to this. Means you can say here some ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई होगी, ऐसा कोई चार्ज सिस्टम रहा होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई. हमें इससे मतलब नहीं कि कैसे बनाई गई, हमें सिर्फ इतना मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बनाई दी गई. नाउ इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैड प्लेस्ड अ डाइपोल इन सच अ मैनर. दिस इज द डाइपोल माइनस q प्लस q, and the dipole is placed in a manner that its dipole moment vector p makes an angle theta with the vector p. Then इस डाइपोल को आपने रखा कैसे, द डाइपोल इज प्लेस्ड ऐसे रखा गया है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर ने कितना एंगल बना रखा है, थीटा. देखो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p हुआ, तो p ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यहाँ पर, तो किसी भी पॉइंट चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा बेटा, थीटा थीटा थीटा, ऑलवेज थीटा. मींस कह सकते हो लेफ्ट अप. नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस डाइपोल,
आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले ही पढ़ा चुका हूं जब इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत की थी बेटा, कि दैट इफ अ चार्ज q, if any charge q is placed in a uniform or any electric field E, then it will experience a force which is equals to what? F is equals to QE. This much amount of force will be experienced by a unit charge or will be experienced by a charge when it is placed in uniform electric field. हम पहले पढ़ चुके हैं F is equals to QE. यहाँ भी तो कुछ वैसा ही हो रहा है. So suppose see this Q is placed in this electric field E, so it will experience a force. Now what will be the direction of that force, as force is a vector quantity? Now as I told you earlier, if the charge is positive, then the electric force will experience in the direction of electric field. And if the charge is negative, then the electric force experienced by that negative charge opposite to the electric field. ठीक है, तो ये प्लस है ना, तो प्लस Q will experience a force QE in the direction of electric field. This will be the force. Magnitude of force is QE, and direction of the force will be in the direction of electric field. And what about with this? This minus Q will also face the same amount of force ना, QE. Why? Because the charges are opposite in nature, but magnitude तो दोनों का same होगा. तो ये भी Q है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E ही है, because the electric field is uniform at everywhere. यानी the magnitude of force is QE, but direction is what? Since it is a negative charge, so direction will be opposite to the electric field. Electric field बेटा ऐसे जा रही है तो force किधर experience करेगा? ये इस तरह. अब हुआ क्या? Now this Q is experience a force QE in this direction. This Q is experience a force QE in opposite direction. So what will be the net force on the dipole? First question which is going to be asked in your board examination is this one. Net force acting on dipole placed in uniform electric field is what? देखो इस पर लगा QE इधर, इस पर लगा QE इधर, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम और डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट है. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F net will be QE प्लस और दूसरा वाला क्या है? माइनस QE. तो नेट कितना है बेटा? यानी कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, देन द नेट फोर्स एक्टेड ऑन दैट डाइपोल इज ऑलवेज जीरो. याद रहेगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन क्या बिल्कुल अपोजिट है. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? दैट इज, ये याद रखना है, दैट इज, मैं जो लाइन लिख रहा हूं उसको याद रखना हमेशा. दैट इज डाइपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ये तो मतलब हुआ भाई, न्यूटन्स लॉ याद है? A is equals to F by m. यही तो आप कहते थे. So the body will have an acceleration A, the mass m will have an acceleration A when a force F will act on that. But यहाँ पर क्या हो रहा है? The net force acting on the dipole is zero. Force is zero, so acceleration is also zero. ठीक है, यानी कि जैसा है, ये जैसा है यहाँ से ना तो आगे की तरफ जा पाएगा, लीनियर मोशन नहीं करेगा. ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या है? ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं जाएगा. मतलब डाइपोल अगर यहाँ पे है तो ये आगे नहीं आ सकता, पीछे नहीं आ सकता, ऊपर भी नहीं आ सकता और नीचे भी नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स बेटा जीरो है. और यही फोर्स तो जिम्मेदार होता है. जैसे मान लो ये बॉडी, या आप एक बॉल लेते थे, फुटबॉल रखी नीचे, आपने उसको किक कर दिया, फुटबॉल आगे की तरफ चली जाती है. बट विदाउट योर किकिंग इज इट पॉसिबल दैट फुटबॉल विल मूव फॉरवर्ड? नहीं होगा, क्योंकि आपने फोर्स ही नहीं लगाया, तो एक्सेलरेशन नहीं आने वाला, उसमें मोशन नहीं होगा. वैसे यहाँ भी तो है, लीनियर मोशन नहीं होगा. यानी डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो ये ऐसा मोशन नहीं कर पाएगा. That is the meaning of what? The dipole is in translational equilibrium. दिमाग में बैठा के रखना, the dipole is not going to move upward, downward, forward or backward. Then यहाँ तक लिख लो. So, okay, the net force acting on the dipole is zero. Now what happens भाई? जरा इधर देखो ध्यान से, एक छोटी सी चीज बता दूं, फिर उसको आगे कंक्लूड करो. सपोज दैट देयर इज अ बॉडी, एक रिजिड बॉडी आपने ऐसे ले रखी है, या कोई भी बॉडी हो आपने, सपोज दैट देयर इज अ बॉडी एंड टू equal and opposite forces are acting on the two different points of the body, having different line of action. यहाँ पर A है, B है बेटा. एक बॉडी के A पर नीचे की तरफ F अमाउंट का फोर्स लगाया, उसी बॉडी के दूसरे पॉइंट B पर ऊपर की तरफ F अमाउंट का फोर्स लगाया, और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? बिल्कुल अलग अलग है. इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है. क्या होता था? क्या प्रोड्यूस होता था यहाँ पर? एक ये F और F क्या कहते थे आप इनको? कपल कहते थे ना, कपल ऑफ फोर्सेस.
सोचो, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन acted along to different point having different line of action produces a forms a couple. And what did it do? What couples do? Couples try to produce a circular motion which is called what? Torque. ये तो था कि अगर किसी बॉडी पर दो पॉइंट्स पर सेम फोर्सेस F और F अपोजिट डायरेक्शन लगे, अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन में, तो क्या प्रोड्यूस होता था? टॉर्क प्रोड्यूस होता था। क्या कुछ ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है? देखो, एक बॉडी है, ये मान लो A है, ये B है, A पर फोर्स F लगा, B पर फोर्स F लगा। देखो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट, और दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन भी तो अपोजिट है। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है। ये वाला फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग लग रहा है, ये वाला फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन लॉन्ग लग रहा है। मतलब क्या हुआ? देयर इज अ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन direction acted along different line of action forms a couple, means this QE and this QE is forming a couple which will try to rotate the dipole. यही तो होगा। देखो ऐसा डाइपोल है, ऐसे ले लो, ये ऐसा एक डाइपोल है, इस पर लगा QE इस डायरेक्शन में, नीचे वाले पे लगा QE इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, चलो, और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, और ये बॉडी आगे पीछे नहीं जा सकती क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, पहले प्रूव कर चुके हैं। तो क्या होगा? देखो ये यही तो होगा, घूम जाएगी ना, ये जूम ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो, याद रहेगा ना, याद आएगा क्लास 11 में पढ़ा था आपने टॉर्क वगैरह में। यहां हम लिख सकते हैं सिंस QE and minus QE are equal in magnitude, torque। ठीक है, टॉर्क की डेफिनेशन याद है? मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी। टॉर्क इज अ रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। मतलब कि अगर यहाँ पर दोनों पे दो अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क लगा तो टॉर्क क्या करता है? रोटेशनल इफेक्ट बॉडी में लाता है, तो ये बॉडी क्या करेगी? रोटेट कर जाएगी। मतलब एक चीज श्योर हो गई कि इफ a dipole is placed in a uniform electric field, then it is not going to do any kind of translational motion because the net force is zero. But these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Hence, they will produce a torque. Now, this torque has to be calculated by you. What will be the amount of torque? अब torque की basic definition तो आपको याद है भाई, है ना? Two pair of equal and opposite charges acted along different line of action. What will be the magnitude? Tau is equals to, याद है? टाउ इज इक्वल्स टू आप निकालते थे R क्रॉस F, सिंपली आप लिखते थे टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स, मींस इन दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी निकलवा के सिखाता हूं कैसे निकालें, याद रख लो, अभी बेसिक याद करा रहा हूं। R इंटू F। R क्या होता है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस फोर्स को, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होता था? दोनों कपल्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड फोर्स का, ठीक। और निकालें टॉर्क कितना लगेगा भाई। अगर इस डायग्राम को देखो तो मान लो बेटा ये पॉइंट आपका क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल, बिल्कुल बीचों बीच में है ना। तो इसके इधर लेंथ कितनी होगी? L, और ये मान लो P इधर लिख दिया, इसके इधर ये भी लेंथ कितनी होगी? L। टोटल लेंथ विल बी द 2L। सेंटर ऑफ द डाइपोल से एक एंड की दूरी कितनी होगी? L लेते थे आप, ठीक। अब जरा सोचो, दो तरीके के टॉर्क निकालने हैं। देखो इस पर भी एक फोर्स लग रहा है, इस पर भी एक फोर्स लग रहा है, तो एक बार इस पे टॉर्क निकालते हैं, एक बार इस पे टॉर्क निकालते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं, ठीक। लेट टाउ 1 बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन, नाम दे दिया जाए, ये मान लो B है, ये मान लो A एंड है, एक्टिंग ऑन A। और टाउ 1 विल निकाले बेटा, टाउ 1 विल बी व्हाट? अब डेफिनेशन क्या है? R इंटू F, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। अच्छा, इस पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है? QE। तो ये हो गया क्या? QE। टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा सोचो, ये जो डाइपोल आपने जैसे देख लो, ये ऐसे डाइपोल था, ये मान लो एंड था, ये इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ये
और नीचे वाले फोर्स लग रहा ऊपर, ऐसे घूम गया था। ठीक, जरा सोचो, यही तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी बेटा, इसी एक्सिस के लॉन्ग तो घूमेगा और ऐसे, ये ऐसे आगे पीछे तो जा नहीं रहा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होने की वजह से। मतलब ये हो गई एक्सिस, ये एक बार नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसे घूम रहा है। तो जरा सोचो, इस एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी कितनी। अब कभी कभी आप गलती से ये डिस्टेंस ले लेते हैं तो ये गलत हो जाता है ना। देखो जैसे मान लो ये है एक्सिस, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे लग रहा था, मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये हो गई क्या एक्सिस, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी। मैं ये रख दे रहा हूँ, ठीक, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, कैसे निकालते परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो गई एक्सिस, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, नहीं ये है ना, ये मींस आप ये कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर दिस टॉर्क व्हिच इज एक्टेड अलोंग दिस लाइन ऑफ दिस एक्सिस ना, ये ऐसा घूम के आएगा। ठीक, अच्छा ये एल है, ये थीटा है, तो एल का ये कंपोनेंट कितना होगा सोचो जरा भाई। एल के साथ ये कंपोनेंट लिखोगे एल कॉस थीटा, और इसके बिल्कुल इधर जाओगे तो ये क्या आएगा एल साइन थीटा, इसी के पैरेलल इधर चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये एल है, ये थीटा है, एल का ये कंपोनेंट क्या हो जाता है एल कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। इधर ब्रेक करते थे, इसी के पैरेलल लेके चले जाओ इधर, ये इसके बिल्कुल पैरेलल, वेक्टर्स को उसके पैरेलल ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी क्या आ जाएगा एल साइन थीटा। देखो ये क्या आ गया एल साइन थीटा। सो एल साइन थीटा विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायरेक्ट लिखे, देखो टाउ 1 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये होता था टाउ इज इक्वल्स टू आर इनटू एफ। एफ तो हो गया QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बेटा ये, दैट विल बी एल साइन थीटा, यानी QE इनटू एल साइन थीटा। अच्छा इसकी डायरेक्शन देखो कैसी होगी, ये टॉर्क इधर ही लगेगा, ये ऐसे, ये क्यू इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये घूमेगा ऐसे। देखो ये घूम के ऐसे आया ना, मतलब कैसी डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज। चलो अब दूसरा इस पे निकालो टॉर्क। अब इस पे टॉर्क कैसे निकलेगा भाई, देखो ये इधर लग रहा है फोर्स, ठीक है, एक्सिस तो अभी भी यही है ना। अब देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख लो, बस में कोई गलती नहीं होगी। ये है लाइन ऑफ एक्शन ना, और ये है एक्सिस, तो इस फोर्स और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी, ये ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि दिस, ठीक है, दिस विल बी व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये लेंथ एल है, ये एल है, तो कितना हो जाएगा, ये भी तो एल साइन थीटा ही आएगा। देखो कहीं पे भी निकाल लो, जैसे डाइपोल यहाँ रखोगे, ये थीटा है, तो ये भी क्या जाएगा थीटा, इस एल के साथ ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा, और ये वाला क्या जाएगा एल साइन थीटा, उसी के पहले आपने मूव कर लिया एल साइन थीटा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या आएगा एल साइन थीटा आएगा। यहाँ पर मान लो टॉर्क लगा कितना बेटा T1 क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्या होगा सोचो जरा, यहाँ पर भी ऐसे जाएगा इस तरह से, यानी यहाँ पर टॉर्क लगेगा कुछ ऐसा, मान लो कितना लग रहा है टाउ 2, टाउ 2 की वैल्यू निकालो। फिर वही बात, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड QE, F हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकाली आपने ये L sin थीटा, यानी QE इनटू L sin थीटा। और इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी इस तरफ ना, ये ऐसे घूमे ये, यानी यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज, और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज, यानी ये डायरेक्शन भी कैसी है क्लॉकवाइज है। तो टोटल टाउ नेट कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर लिया जाए, काम खत्म हो जाएगा। देखो टाउ नेट बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 कितना बेटा QE इंटू एल साइन थीटा, टाउ 2 कितना है QE इंटू एल साइन थीटा। सिंपली क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल। तो टाउ नेट नेट टॉर्क कितना है बेटा, देखो QE एल साइन थीटा, QE एल साइन थीटा क्या 2 QE एल साइन थीटा। मैं घूमो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखो 2 Q और L, इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल ना, 2Q है, वेक्टर P लिख सकते हो, यानी कि टाउ नेट या वेक्टर मत लगाना है, ठीक है, टाउ नेट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L को लिख दिया P इंटू E साइन थीटा। दिस विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल when it is placed in uniform electric field, tau net is equals to PE sin theta। तो मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा
क्या इसका वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हो? टाउ वेक्टर में क्या लिख सकते हो, लिखोगे P क्रॉस E। क्यों? याद करिए, कहीं भी आपको लिखा रहता था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है? A B साइन थीटा। ये मान लो A है, ये B है, A B साइन थीटा बराबर क्या है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। Now tau is equals वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P, कैसे पता चलेगा? तो भैया देख लो, इस समय जो तुमने टॉर्क की वैल्यू निकाली है, इसकी डायरेक्शन कैसी है? टॉर्क दोनों क्लॉकवाइज थी, मतलब कैसी आएगी? क्लॉकवाइज ही आएगी ना, ठीक। अब अगर ध्यान दो तो आपको इसकी वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन बताया गया था, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर विल बी अनदर वेक्टर। भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो एक स्केलर आता था, उसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो उनका रिजल्टेंट फिर से क्या मिलता था, एक वेक्टर। एंड व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर? द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ना। याद करो पूरी डेफिनेशन, the cross product of the two vector will be another vector having magnitude a b sin theta and the direction will be perpendicular to both a and b or the plane containing a and b। जिस प्लेन में a और b होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। सपोज दैट जैसे i क्रॉस j निकालते थे, k क्रॉस j निकालते थे ना, तो i और j का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो ना तो i मिलता था ना j मिलता था, क्या मिलता था? k कैप मिलता था। ये तो याद था ना। इसका मतलब कि जो टॉर्क आ रहा है वो P और E जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड्स वो देखना पड़ेगा। और देखो भाई, सपोज दैट जैसे इस केस में तुमने कहा P क्रॉस E है, ठीक है, तो P क्रॉस E मतलब क्या? देखो ये हो गया वेक्टर P, ये हो गया वेक्टर E, तो P क्रॉस E, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल जो लगाते थे, P से E की तरफ चलो, तो आप जब P से E की तरफ चलोगे थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। मतलब इस वक्त जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो कैसी है? इनवर्ड्स है ना। देखो P और E नीचे, P से E की तरफ, P से E की तरफ चलोगे थंब किधर गया? इनवर्ड्स, तो अंदर की तरफ हो गई। अगर E से P तक जाते, देखो E और E से P की तरफ चलो, E से P की तरफ, थंब किधर जाता? बाहर की तरफ। डायरेक्शन क्या होती? आउटवर्ड। तो इतना बहुत ध्यान नहीं देना है इसमें, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब लिखने में वो तरीका देख लेना कि P क्रॉस E लिखे या E क्रॉस P। तो देखो आपका जो केस था P से E की तरफ गए, देखो डायरेक्शन कैसी थी? नेट टाउ की डायरेक्शन निकाली थी आपने क्लॉकवाइज। अब सोचो क्लॉकवाइज जब चलोगे तो P से E की तरफ ही चलोगे क्लॉकवाइज। ये देखो घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, तो P से E की तरफ इनवर्ट होगा। यानी आपने जो केस लिखा है इसको P sin थीटा को कैसे लिखोगे? P क्रॉस E ही लिखोगे, ठीक है। अगर यहाँ डायरेक्शन बेटा एंटी क्लॉकवाइज आती ना इसकी, नेट नाउ नेट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आई, तब क्या लिखते हैं आप? E क्रॉस P, क्योंकि आपको पता है वेक्टर में P क्रॉस E और E क्रॉस P का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। जैसे P क्रॉस E क्लॉकवाइज है तो कैसे? इनवर्ट। अगर ये टॉर्क E क्रॉस P लिख देता तो ये तभी होता ना जब डायरेक्शन कैसी होती? एंटी क्लॉकवाइज। और जरा E क्रॉस P आओ, E से P की तरफ, किधर के? बाहर की तरफ, यानी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? नेट आउटवर्ड्स, ठीक है। बट फिलहाल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। टाउ इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, वेयर P is the electric dipole moment, E is the uniform electric field, and theta, this theta is going to play a very important role. The theta is the angle between electric dipole moment and electric field. Theta is the angle between positive direction of electric field and electric dipole moment. See, positive direction of electric field and electric dipole moment. This is the angle theta. This you have to remember for the calculation of the cases of the numericals. Then, so दो बातें हमको पता चली बेटा इसमें कि अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, then it will experience a net force 0, and because of that it will have a translational equilibrium. Therefore, the dipole will not move upward, downwards, forward or backwards. But the two forces acting on the dipoles are opposite in direction, same in magnitude, acted along different line of actions, which causes a torque. And because of that torque is what? The rotating effect of force. Because of that torque, the dipole will be rotated in a particular direction. अब जो मैंने शब्द आपसे कहा था, कब तक, क्यों ऐसा कर रहा है, जरा ध्यान दो। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी थी, फ्रॉम हियर टू हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी थी। अब ये इधर QE लगा, इधर माइनस QE लगा और ये घूम के ऐसे आ गया,
ये कंप्लीट कर लेना है क्योंकि डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो ये ऐसा था, अब इसमें फोर्स आता है तो घूम के ऐसे आ गया ना, ये ऐसे, ये माइनस क्यू इधर से इधर पहुंच गया, प्लस क्यू इधर से इधर पहुंच गया, ये ऐसा प्लस क्यू। डायरेक्शन क्या हो गई, देखो यही तो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, माइनस से प्लस की तरफ। अब देखो क्या किया इसने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डाइपोल को अपने ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर लिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड बोथ द डायरेक्शंस आर व्हाट, सेम। दैट्स व्हाट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्राई टू डू। किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे यूनिफॉर्म में तो फोर्स टॉर्क लगेगा, कब तक लगेगा, that torque will exert on this dipole until or unless this electric dipole is aligned in the direction of electric field। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। अब यही आपको निकालना है कि टॉर्क कब तक लगेगा, टॉर्क कहां पर मैक्सिमम होगा और टॉर्क कहां पर मिनिमम होगा, और उस पर कुछ केसेस पढ़ने। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज ट्राई टू align the electric dipole moment in its own direction। और कितना टॉर्क लगाएगा उसके ऊपर, PE sin theta। Now the value of this torque is variable। Remember this, the value of this torque is variable। Why I am saying P is constant, Q into 2L, electric field is uniform, ठीक है, but theta is the angle between electric dipole moment and electric field ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे बेटा इसके ऊपर टॉर्क लगेगा वैसे वैसे ये इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा, तो थीटा एंगल क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, थीटा एंगल क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। थीटा अगर वेरी करेगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब दिस वैल्यू ऑफ टॉर्क इज व्हाट, वेरिएबल, ये बदलती रहेगी। ऐसा नहीं कि फिक्स रहने वाली है कि ऐसे डाइपोल रहा तो भी टॉर्क वही लगे, ऐसे रहा डाइपोल तो भी टॉर्क लगा, ऐसे लगा डाइपोल तो भी टॉर्क वही लगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ दिस टाउ इज वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड थीटा विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टॉर्क। ये तो अगर ये थीटा वेरी करेगा तो वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहाँ कम होगी, कहाँ ज्यादा, कितनी ज्यादा होगी, कितनी कम, वैल्यू आपको निकालनी। इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं केसेस में। Torque acting on a dipole when it is placed in uniform electric field is how much? In magnitude it is tau is equals to P sin theta। अब इसमें मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, ये सब आपको निकालना है। तो आप पहले टाउ मैक्स निकालो। केस 1, मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा और कब लगेगा। अब जरा सोचो, द वैल्यू ऑफ दिस टाउ डिपेंड्स ओनली ऑन दिस थीटा ना, P तो कांस्टेंट है। अब सोचिए साइन, ये टाउ की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1। तो टाउ की वैल्यू अगर 90 कर दूं और 270 कर दूं, साइन 90 इज व्हाट, 1 एंड साइन 270 इज आल्सो व्हाट, 1। यानी कि टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्स व्हेन आइदर थीटा इज 90 डिग्री और 270 डिग्री, implies that tau is equals to P sin 90। कितना आएगा बेटा, साइन 90 1 हो जाएगा तो टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट, PE, और PE sin 270 दिस विल आल्सो गिव्स व्हाट, PE। यानी कि जो मैक्सिमम टॉर्क है जो आपको मिलने वाला, टाउ मैक्स विल बी व्हाट, PE। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो बोर्ड में पूछा जाता है वो ये, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर इज PE। कभी कभी इसका डायग्राम भी आपसे कहता है बनाने के लिए। अब जरा सोचो डायग्राम कैसे बनाओगे, इधर ही बनाए, दिस विल बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, P and E ना, electric dipole moment electric field, this will be the electric field E। Now if theta should be 90 then the dipole should place like this na, this one, minus Q plus Q and the direction of electric dipole moment for minus 2 plus। Now see minus और electric field ये कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री। इस केस में टॉर्क कैसा होगा, टाउ विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा 270 वाला देखो, ये बता नहीं ये क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का। अब मैंने आपसे अभी लेक्चर को आप चाहे रिवाइंड करके देखिए, मैंने कहा था थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब 270 कैसे बनाओगे, सोचो जरा। डाइपोल अभी भी ऐसे ही रखा जाएगा,
यहाँ पर बेटा बनेगा प्लस क्यू, यहाँ पर बनेगा माइनस क्यू। अब जरा सोचो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है, ये ना। अब मैंने कहा था पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच की वैल्यू है थीटा। तो ये हो गया क्या आपका डाइपोल मोमेंट। नीचे की तरफ देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड 90 90 180 प्लस 190 270। ऐसे केस में भी देखो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी ये हो गया व्हेन थीटा इज 270 डिग्री। ठीक, इस वक्त भी टाउ क्या है आपका, मैक्सिमम। तो डायग्राम याद रखिएगा, वैल्यू याद रखनी है, टाउ विल बी मैक्सिमम इन थीटा इज 90 और 270। व्हाई? बिकॉज़ टाउ डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, 90 और 270 होती है। तो ये हो गया 90 का केस और ये हो गया 270 केस। ऐसा ही सिचुएशन में अगर डाइपोल रखा जाएगा तो टॉर्क क्या लगेगा उस डाइपोल पर, मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पर देखो जैसे ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू, सोचो समझ भी लो ना, कोई जरूरी नहीं रट्टा मारो, खुद सोचो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, डाइपोल ऐसे रखा है, मैंने क्या कहा आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब ये सोचो अगर ये डाइपोल बेटा ऐसे है तो इसको ऐसे आना पड़ेगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जाएगा। देखो प्लस क्यू को इधर जाना पड़ेगा, माइनस क्यू को इधर आना पड़ेगा, तभी तो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। और जाएगा भी देखो प्लस क्यू पर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा इधर, माइनस क्यू पर अवे टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा इधर, और ये डाइपोल अरेंज जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस केस में भी टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों केसेस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। केस 1 था आपका व्हेन थीटा इज 90 और 270। ठीक, अच्छा अब और देखें कि मैक्सिमम तो हो गया, अब मिनिमम और निकालते। केस 2 व्हेन टाउ इज मिनिमम। तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम कितना हो सकता है भाई, देखो फिर वही बात ना, टाउ की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, पी ई और साइन थीटा पर। पी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, मतलब बचा क्या, केवल थीटा। तो जो टाउ की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब थीटा मिनिमम होगा। थीटा का मिनिमम पूरा साइन थीटा जब मिनिमम होगा, और साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 0। यानी कि टाउ विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री पर भी तो 0 होता है, साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हालांकि देखो इसमें जैसे मैक्सिमम की 2 कंडीशन निकली ना, पूछा यही जाता है, लेकिन इसमें मिनिमम की जो 2 कंडीशन है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्यों ऐसा, और वैल्यू पहले निकाल लें। सो व्हेन थीटा इज 0 और 180, टाउ इज व्हाट, पी ई साइन 0। अच्छा साइन 0 होगा तो टोटल टॉर्क कितना आएगा, 0, और पी ई साइन 180, साइन 180 भी आएगा, टोटल कितना होगा, 0। यानी मिनिमम 0 होगा 2 जगहों पर, मिनिमम होगा 0 कहां पर, 0 पर और 180 डिग्री पर, दोनों पे टॉर्क 0 आएगा। और इसका डायग्राम बनाए, तो डायग्राम बनाने के लिए वही फिर करिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन याद रखना। कभी कभी क्या होता है ना, आप ये इतना ध्यान रखना कि ऐसे रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, माइनस क्यू प्लस क्यू को बनाते समय आप भूल जाते हैं कि डाइपोल मोमेंट थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का। तो अगर मान लो आपने डाइपोल ऐसे रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया। अब ये क्या होना चाहिए, माइनस क्यू, और ये क्या होना चाहिए, प्लस क्यू, तभी तो बनेगा इन द डायरेक्शन। देखो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ऐसे केस में देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ अगर डाइपोल मोमेंट डायपोल बनाया तो ई और पी दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0। ई और पी के बीच का एंगल कितना है, 0। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, टॉर्क विल बी 0। ठीक, इस केस में इस डाइपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना है बेटा, 0 है। मतलब इस डाइपोल के साथ पहले तो ऐसा मोशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था। इस डाइपोल के साथ एक ही चीज हो रही थी, वो ऐसा हो रहा था, रोटेट कर रहा था। लेकिन रोटेशन की वजह क्या थी, टॉर्क। अब तो वो टॉर्क भी नहीं लग रहा है, टॉर्क भी नहीं लग रहा है, मतलब ये जहां पर है एज इट इज यहीं रहेगा, ना तो ये आगे और पीछे जाएगा, ना ऊपर और नीचे जाएगा, और ना ही ये ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अपने इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0 है। यानी कि इस कंडीशन में आप कह सकते हो सिंस नेट फोर्स इज 0, वो पहले ही हो गया था, एंड नेट टॉर्क इज ऑल्सो व्हाट, 0, हेंस
द डाइपोल इज इन, ये वर्ड याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो होगा भाई, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जहां है जैसा है वैसा पड़ा रहेगा, कुछ नहीं लग रहा उसके ऊपर, ना टॉर्क लग रहा है और ना ही कोई फोर्स लग रहा था। तो कैसी कंडीशन हो गई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, कैसी कंडीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये तो हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 पर, और जरा थीटा इज इक्वल टू 180 बना देंगे। ये तो हो गया, और इसको दूसरा बनाए, ये ऐसे कर दिया आपने फिर से। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, इसको समझने का और भी तरीका है। जैसे मान लो आपने इस डाइपोल को ऐसे लिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक और एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हर एक बॉडी रहना पसंद करती है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या भाई, जहां हो स्टेबिलिटी हर चीज पसंद करती है ना। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि नेचर का, यूनिवर्स का नेचर ही है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन द स्टेबल स्टेट। मतलब अगर इस डाइपोल को थोड़ा सा मैं ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस बना दें, कैसे उसको मिटा दे रहा हूं, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। इस डाइपोल को ऐसा मैंने कर दिया, यानी माइनस क्यू को यहाँ ले आया, प्लस क्यू को यहाँ लेके चला गया मैं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा ये है, ये बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही थी, या ऐसा कह लो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल डी थीटा है, बहुत थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस अगर कर दूं, यहाँ पे ऐसे था, इसको मैंने ऐसे करके छोड़ दिया। जैसे ऐसे छोड़ो देखो, प्लस क्यू ई की तरफ ऐसा फोर्स लगेगा और माइनस क्यू की तरफ ऐसा फोर्स लगेगा, और ये फिर घूम के क्या होगा, अपने डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अलाइन कर लेगी। ये तो हुआ ना, देखो ऐसे था, ऐसे था, इतना किया और फिर छोड़ दिया, ये फिर क्या करेगा, अपने आप को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा ना। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तुरंत एक टॉर्क लगेगा और फिर वो घुमा देगा, क्योंकि अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रहेगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है बेटा कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डाइपोल रहना पसंद करता है कि अगर उस सिचुएशन से थोड़ा सा भी मैं डिस्प्लेस करके उसको छोड़ दूंगा, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा, तो वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई आल्सो इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो थीटा 180 में क्या होता है, जब थीटा क्या हो, 180 डिग्री हो। अब मैंने कहा ना आपसे, डायग्राम बना के याद रखिएगा, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये है आपका डाइपोल। आपकी माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो डाइपोल मूवमेंट कैसा हो गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी, कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। अच्छा यहाँ पर भी टॉर्क की वैल्यू निकाले, पहले नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितना है। नो डाउट पूरे के पूरे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0 होना है, वो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पहले से बैठ रखा है। टॉर्क बताओ कितना होगा, टॉर्क बराबर फिर लिखोगे ना पीई साइन 180 डिग्री, पहले निकाल चुके हो। साइन 180 डिग्री कितना है, 0 आएगा। मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, यानी कि नेट फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है। हेंस या ऐसे लिख दूं पूरा, सिंस एफ नेट एंड टॉर्क इज 0, therefore the dipole is in equilibrium। नेट फोर्स भी 0 है, तो आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। टॉर्क भी 0 हो गया, यानी कि घूम भी नहीं सकता है इस वक्त। टॉर्क भी क्या होगा, 0 हो गया, घूम ही नहीं सकता, मतलब इक्विलिब्रियम में तो है। बट क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं कहेंगे बेटा, इसको स्टेबल नहीं कहते। क्यों, क्योंकि देखो ऐसी सिचुएशन में है। अब इसको तो फिर से और डिस्प्लेस करें थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यानी ये प्लस क्यू यहाँ पहुंच गया और माइनस क्यू यहाँ गया। ऐसे था ना पूरी, पहले ऐसा था, ये ऐसे। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो क्या ऐसे करने के बाद अगर मैं अपना फोर्स हटा दूं तो क्या ये वापस इस पोजीशन पे आएगा। देखो जैसे तुमने इसको डिस्प्लेस किया, इस पर एक फोर्स लगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर एक फोर्स लगा माइनस QE अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डाइपोल बेटा अब ऐसे नहीं रहेगा, देखो ऐसे था, ऐसे छोड़ा, अब जैसे ऐसे छोड़ोगे ना तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करेगा, अलाइन करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तब अलाइन होगा ना जब ये घूम के पूरा ऐसे आ जाए। इसका मतलब कि ये जो सिचुएशन थी ना इक्विलिब्रियम में जो थी, नेट टॉर्क 0 लग रहा था, नेट फोर्स 0 लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप इसको फोर्स लगा के या टॉर्क लगा के डिस्प्लेस करोगे ना तो अपने ओरिजिनल पोजीशन, पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगा, बल्कि घूम जाएगा ऐसा। इसीलिए इस सिचुएशन को बेटा कहते हैं डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम, बट दिस इक्विलिब्रियम इज व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये स्थिर नहीं रहेगा।
जब तक इस सिचुएशन में है तब तक तो रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दो तो पूरा का पूरा घूम के अगले डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बोर्ड में सिंपल पूछा था, ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ डाइपोल इन अनस्टेबल पोजीशन। अब आपके मन में रहेगा टॉर्क 0, नेट फोर्स 0, तो 0, टाउ बराबर 0, साइन 0 पे भी होता है, लेकिन साइन 0 पर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि यहां से अगर डिस्प्लेस करूंगा फिर घूम के वापस आ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर ये ऐसा है, अगर इसको डिस्प्लेस करूंगा तो पूरा का पूरा घूम के ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंडीशंस को याद रखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तब कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नो डाउट दोनों कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, और जब थीटा की वैल्यू 90 या 270 होगी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। इतनी बातें याद रहेंगी, क्योंकि इस पे बेटा क्वेश्चन आता है। अभी जो वर्क डन निकालेंगे ना, पूरा पूरा इसी बात पे निर्भर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, या नहीं देता ऐसे क्वेश्चन की फाइंड आउट द टॉर्क व्हेन एंगल इज 270 डिग्री या एंगल इज 180 डिग्री, वही कहेगा फाइंड आउट द टॉर्क व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट द टॉर्क व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन मैक्सिमम, व्हेन द डाइपोल या व्हेन विल बी द डाइपोल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, एंगल नहीं देगा। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है कि ये स्टेबल, याद रखना क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। 0 इस पे भी है, 0 इस पे भी, बट फिर भी इसको स्टेबल इसको अनस्टेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा, बल्कि घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका बोर्ड में आया 2011-2015, टू टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। In which orientation a dipole placed in uniform electric field is in stable and unstable equilibrium? As I told you, the question is itself marked for only uniform electric field, क्योंकि वही आपके कोर्स में क्वेश्चन बेटा कि किस तरीके के ओरिएंटेशन में डाइपोल रखा जाए जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 1 मार्कर क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको क्या करना है, पहले केस के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था, जब थीटा कितना होता था बेटा, 0। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी 0 डिग्री, और फट से डायग्राम बना दो, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है इसमें। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी 0, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बनाया, बीच में एक -q और +q, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया। ठीक, अनस्टेबल के लिए भाई थीटा इज व्हाट, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तभी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। नो डाउट टॉर्क भी 0 है, नेट फोर्स भी 0, सब कुछ 0। ये ऐसे बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मोमेंट आपने ऐसे बना दिया। अब इधर क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो -q +q लिखा था ना, माइनस से प्लस तरफ, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा +q, इधर हो जाएगा -q, और ये हो गई डायरेक्शन आपकी वेक्टर p की। तो देखो वेक्टर p इधर और वेक्टर e इधर, कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया। बस आपको इतना बना देना है, बस हो गया। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसी पूरी दफा मैक्सिमम टॉर्क तो ऐसे बना देते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लेते हैं एक, और उसमें एक डाइपोल ऐसे रख देते हैं आप, +q -q, और ये क्या हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क मैक्सिमम का हो जाता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 1 मार्कर क्वेश्चन है, वो सिंपल सवाल इससे आता है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद p 3 × 10⁻⁸ कूलोमीटर placed with its axis making angle theta with vector e experiences a torque of 1.2 × 10⁻³ Newton. Calculate the magnitude of electric field means कोई एक डाइपोल है जो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे वो रखा गया बेटा, उसके ऊपर एक टॉर्क लगा इतना। ठीक है, आपसे पूछा गया है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। देखो 2011, 15, 5 3 बार पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 बार आपसे पूछा भी गया बोर्ड में, 11, 15 एंड 5। क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट एक डाइपोल है having dipole moment 3 × 10⁻⁸ which is placed in a uniform electric field at an angle 30 degree, and that dipole experience a torque of 1.2 × 10⁻³ Newton. Now what will be the value of electric field, the magnitude of electric field means क्या क्या given है आपको, P is given to you, that is 3 × 10⁻⁸ कूलोमीटर। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वी वांट टू फाइंड आउट, नहीं पता हमको। थीटा दिया गया है बेटा 30 डिग्री, और कुछ दिया गया है टॉर्क जो एक्सपीरियंस कर रहा है 1.2 × 10⁻³ सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ आपको गिवन है। नाउ वी नो दैट वी डोंट डू एनीथिंग। क्यों भाई, वी नो दैट, चलो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, P E
साइन थीटा टाउ इज गिवन टू व्हाट 1.2 into 10 to the power 3. P is what 3 into 10 to the power 8 नीचे आ जाएगा 3 into 10 to the power minus 8. डन. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं पता, यहीं छोड़ दो इसको. और साइन थीटा साइन 30 कितना होता है 1/2 यानी इंटू 1/2. ये तो आएगा. वैल्यू को सॉल्व 1.2 into 10 to the power 3 अपॉन देखो टाउ हो गया, पी नीचे आ गया बेटा, ई की वैल्यू तुमको निकालनी, साइन थीटा नीचे लेके चले आए 1/2 हो गया, साइन 30 1/2 हो गया. सॉल्व करोगे चीजों को तो आपकी वैल्यू आएगी, ये देखो 2 इसे काट सकते हो, घटेगा 10 to the power -8 ऊपर जाके 10 to the power +8 हो जाएगा. 1.2 डिवाइड बाई सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 8 into 10 to the power 10 न्यूटन पर कूलम. दिस विल बी द आंसर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. अब सिंपल सा फॉर्मूला याद है, जब फॉर्मूला याद है आपको क्वेश्चन कर लेंगे. तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था. और एक सवाल इसका एससी वर्मा का देखते हैं. एससी वर्मा सर ने एक क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको और करने की. क्वेश्चन जो है एससी वर्मा सर की बुक का है, इसमें 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिलाया गया है. ठीक है, क्लास 11 से लेकर क्लास 12 के स्टॉक को लेकर सारी चीजें मिलाई गई हैं. क्वेश्चन अच्छा है, देखिए घबराइएगा नहीं कि सवाल बहुत बड़ा है, आसान सा है. सिर्फ आपको 1-2 कंडीशन एसएचएम की पता होनी चाहिए, बस नहीं होंगी तो ये बता दूंगा. जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, फिगर शो, तभी मैं फिगर बना रहा हूँ. फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय 2 पार्टिकल फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L. Mass of each particle is m and charge is plus minus q. Dipole is placed parallel to electric field in the region. मतलब कि एक ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है जो कैसा है, पैरेलल टू द फील्ड है. जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है और इसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है. पार्टिकल डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ऐसा ना, ये -q और ये +q, ये ऐसा एक डाइपोल रखा गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है. डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अबाउट इट्स सेंटर एंड रिलीज्ड. ठीक है, फिर क्या किया गया, इस डाइपोल को ऐसे नहीं किया गया, डाइपोल को थोड़ा सा -q +q बहुत छोटे से एंगल के लिए, थीटा के लिए डिस्प्लेस कर दिया गया. क्वेश्चन यही शुरू होता है, डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अबाउट इट्स सेंटर एंड रिलीज. जैसा भी कहा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में था ये, उसको ऐसे कर दिया और फिर इसको छोड़ दिया एंड रिलीज्ड. तो आपको बताना है एंगुलर एक्सीलरेशन और शो करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द मोशन इज ऐसे. अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा, देखो कई सारी चीजें बेटा, for very small angular displacement the motion will be SHM and also find its time period. अब पहले और देखें कि मोशन SHM होगा कि नहीं होगा. देखो डाइपोल ऐसा था, ये ऐसे रखा हुआ था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही, डाइपोल मूवमेंट भी ऐसे जा रहा. देखो -q +q, थीटा 0 है. ठीक है, अच्छा फिर इसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, और फिर बहुत छोटा ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया. छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया आपने, थीटा बेटा, बहुत छोटा. तो जब इसको यहाँ छोड़ोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था ना, तो फिर क्या करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा. लेकिन जब ये वापस आएगा तो अपने मोशनल इनर्शिया की वजह से यहाँ पर रुकेगा नहीं. तो क्या करेगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा. जैसे देखो ऐसे हो, यहाँ पर मान लो बॉल रखी हो, यहाँ उठा के यहाँ रख दो आप, और फिर बॉल को छोड़ दे तो बॉल जूम से नीचे आएगी, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं ना, अपने मोशनल इनर्शिया की वजह से आगे चली जाएगी, फिर वापस आएगी, लेकिन फिर नहीं रुकेगी, फिर आगे जाएगी, और कुछ देर बाद जाके क्या होगी, यहाँ पे पहुंचेगी ना. वैसा यहाँ पे भी तो होगा कि जब ये रॉड यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, और छोड़ दी जाएगी, तो क्या करेगी, नीचे आएगी, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं, थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे कुछ देर बाद जाके क्या होगी, रुकेगी. तो यही देखना है कि जो मोशन है, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बहुत छोटा हो तो हमें प्रूव करना है कि जो मोशन है वो कैसा होगा, SHM जैसा होगा. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर ये मोशन हो रहा है तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, फिर हमें निकालना है उस SHM का टाइम पीरियड. 3 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में कंपाइल किया गया. ठीक, तो और पहले देखिए भाई, अच्छा SHM थोड़ा बता दें, भूल गए होंगे आप SHM क्या होता था. मैंने आपसे कहा था एक पार्टिकल है, उसकी कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन निकलवाए थे. मैंने आपसे कहा था अगर अल्फा बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन हो तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा. अगर ऐसा कहीं दिख जाएगा तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, बॉडी सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है. अल्फा क्या होता था, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन. थीटा क्या होता था बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम प्रूव कर लेंगे कि हमारा भाई क्या होता है, एसएचएम हो रहा है। मतलब कि हमें पूरे के पूरे केस में क्या पता करना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। इसीलिए पहले कहा गया था ना फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, पहले अल्फा निकालेंगे, ठीक है, फिर ये कंडीशन देखेंगे कि भाई थीटा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप पहले अल्फा की बात करें, अल्फा का रिलेशन पता है? चलो यही शुरू करते हैं क्योंकि उधर तक जाना पड़ेगा। वी नो दैट, देखो टाउ इज इक्वल टू बहुत पुराना एक भद्दा सा रिलेशन आपके हिसाब से आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने कहा था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये बिल्कुल वैसे जिसमें आपको आया था, मैंने आपको एक रेलेवेंस याद कराया था लीनियर फोर्स और रोटेशनल फोर्स में, ठीक है। लीनियर फोर्स में आप फॉर्मूला पढ़ते थे F इज इक्वल टू ma। मैंने आपको याद कराया था कि बेटा जो रोल लीनियर फोर्स में F करता है वही रोल रोटेशनल फोर्स में कौन करता है, टाउ। जैसा रोल मास का होता है लीनियर मोशन में वैसा ही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था रोटेशनल मोशन में। ए लीनियर एक्सेलरेशन होता था, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एनालॉगी के हिसाब से F बराबर है में तो टाउ बराबर आई अल्फा, यानी ये फॉर्मूला होता है आपका टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब आपको अल्फा निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अब खुद सोचो, एक डाइपोल है which is placed in uniform electric field E, so as we have done it in the just before few minutes, if a dipole is placed in uniform electric field it will experience a torque, and the value of that torque is what, torque will be what, P E sin theta। लेकिन देखो हमसे कहा गया है कि थीटा बहुत ही क्या लेना है बेटा, छोटा है ना, फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, सो दैट इज फॉर स्मॉल एंगुलर, बहुत छोटा है। स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया था, कहाँ गया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो एंगल है बहुत ही छोटा सा है। तो ये बताओ, तुम इसको इधर ले जा रहे हो ना, ये ऊपर की तरफ, टॉर्क किधर लगेगा इस पे, नीचे की तरफ, और ये थीटा बहुत ही छोटा है। देखो दो चीजें होंगी, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अब अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये तो कंडीशन मैच क्यों कर, तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर, लेकिन कब, अगर थीटा बहुत ही छोटा हो। एक चीज, दूसरी चीज, हम इसको बेटा किधर ले जा रहे हैं, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कर रहे हो, लेकिन इस बॉडी पर टॉर्क जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है वो किधर लग रही है, नीचे की तरफ, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। नहीं, टाउ और थीटा के बीच में 180 का डिफरेंस है ना, मतलब अपोजिट जा रहा है। तो जो टाउ लगेगा वो क्या लिख दो उसको, पी ई थीटा, पी ई थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन था टॉर्क का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या कर दिया, माइनस, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, ठीक। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आपसे कहा गया है भाई कि इन दोनों का जो चार्जेस रखे गए हैं, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू है, मासेस m और m है, और टोटल लेंथ कितनी दी गई, l, लेंथ टोटल कितनी दी गई इसकी पूरी बेटा, यहां से यहां तक की l दी गई थी। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू, p क्या था, डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बताओ, चार्ज यानी क्या q इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी क्या l, 2l मत पुट कर देना ना, गड़बड़ हो जाएगा, याद है आपको q इनटू 2l, जरूरी नहीं, देखो दिखा नहीं है आपको ऐसा। 2l क्या होता था, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ कितनी दी गई, l दी गई, ql e इनटू थीटा विद माइनस साइन, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या मिल गया, टाउ मिल गया। अब आई और चाहिए अल्फा निकालने के लिए। अब आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या याद होगा आपको, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। देखो ये जो डाइपोल है वो ऐसे घूमेगा, ये ऐसा, यानी ऐसी एक्सिस होगी और इस एक्सिस के लॉन्ग ये डाइपोल क्या करेगा, ऐसे रोटेट होगा ये ऐसा। तो इस एक्सिस के लॉन्ग इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, लिख दें ml²/2, नहीं यार। देखो ये रॉड लेते थे, मान लो यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, और टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई, l। तो इस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता था, I = mr² ही होता था, m × r², मास ऑफ द पार्टिकल, और r मतलब जिस एक्सिस के लॉन्ग निकाल रहे हो उस एक्सिस से उस मास की डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके लिए मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालो I1, इसका मान लो कितना I2, जरा I1 निकालो, मास मल्टीप्लाइड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये टोटल L है कि डिस्टेंस कितनी होगी, L/2, यानी L/2 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, m L²/4। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इस मास के लिए, ये भी तो वही आएगा, मास मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी L/2 का स्क्वायर, यानी क्या ml²/4।
ये इधर दोनों क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता था, ml²/4 प्लस ml²/4 मींस क्या, I = ml²/2। ठीक, बट फिर भी आपसे कहूंगा आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सवाल आता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा सिस्टम का याद रखना पड़ेगा, रॉड रिंग इन सबका आपको क्लास 11 में कराया गया था। तो I = क्या आ गया बेटा, ml²/2। ठीक, चलो खैर दो भी आप कॉपी कर लेना बाद में वहां से। इंप्लाइज दैट, अब टाउ निकालो, देखो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ अपॉन आई, अल्फा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई। टाउ कितना है भाई आपका, ये -QL E अपॉन ये कितना बेटा, हाफ ml², 2 ऊपर चला गया, एक L से कट सकता है आपका, इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू ऊपर चला गया 2QE⁻m into L विद द नेगेटिव साइन। ठीक, अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 2QE/ml सब कांस्टेंट ना, 2 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, E M L सब कांस्टेंट है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो ऐसा नहीं लिख सकते, अल्फा इज इक्वल टू -2QE/ml, ये अलग लिख दो, इनटू थीटा, और ये पूरा का पूरा पैकेट बेटा क्या है, कांस्टेंट है। मान लो कोई कांस्टेंट a मान लिया, implies that alpha is equals to minus of a into theta, where a is any constant, which is equals to what, 2QE/ml। याद करिए, अभी आपको मैंने कंडीशन बताई थी सिस्टम की, द एंगुलर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हटा के इक्वलिटी को प्रोपोर्शनलिटी में बदल सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, SHM, व्हिच इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपकी दूसरी बात भी प्रूफ हो गई कि जो रॉड है ये क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी, SHM करेगी। अच्छा, फिर पूछा गया बेटा टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन, implies that t is equals to 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माना था अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन कितना निकला, ये पुट कर दो 2QE/ml इंटू थीटा। माइनस साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि टाइम निकालने बेटा समय कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं वहां पे। थीटा से थीटा कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख दो T is equals to 2π √ ml upon 2QE. This will be the required time period. T is equals 2π √ml upon 2QE। ठीक, तो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है भाई, -2QE/ml upon ml into थीटा। ये पूरा कांस्टेंट था, इसलिए अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, व्हिच इज द कंडीशन ऑफ SHM। देन आफ्टर टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली, फॉर्मूला होता है T π इज इक्वल्स टू व्हाट, T इज इक्वल्स टू 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू थीटा रखी, वैल्यू काट दिया आपने, वैल्यू मिल गई आपको क्या, फाइनल T इज इक्वल्स 2π √ml अपॉन 2QE। थोड़ा सा कट गया है, ठीक। तो फाइनल वैल्यू आपकी आगे बेटा टाइम पीरियड की 2π √ml अपॉन 2QE। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा बस चीजों को ध्यान रखना है, बस आपको माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस क्यों लिया था, ठीक है, ये माइनस क्यों लिया गया था, ठीक।